एंड उसमें जाने का रास्ता है, दैट इज थ्रू जेएस, है कि नहीं? चलिए चलिए, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास वर्क. सो एक्चुअली इस तरह से, हाँ बोलो. So as I told you that we will revise some questions and then we will go to the topic. So ये हमारा जो हमने कल डिस्कस किया था, ये उसका एक समरी है कि नहीं? So this is the summary and I want you to discuss the answers. ठीक है? So what is the first answer? So who discovered your mutations? Remember? Mueller. No. Think. Mutation theory किसने दिया? So as I told you, you have forgotten. Nice. Yes, Hugo Hugo de Vries. de Hugo de Vries. Vries. He was, I told you ना, in case of Mendelism. तो Mendelism में हमने क्या पढ़ा था? That Hugo de Vries जो है, he was the man behind the discovery of mutation. And which plant he used? बोलिए. Enothera lamarckiana. Okay? Enothera lamarckiana. Understood? So the plant which he used was Enothera lamarckiana. ठीक है? Now dash are large mutations and dash are known as small mutations. तो large mutations किसको कहेंगे हम लोग? फटाफट. Chromosomal. Chromosomal. Yes. Chromosomal. Sandeep, don't ask me questions, okay? Yes, sir. Yeah, so your accent should not be interrogative. ठीक है? So chromosomal mutations जो है, ये मैं आपको already भेज चुका हूँ. Okay? See, I have learned this from that teacher. I told you or not? So that is the case. तो इसलिए I am in the learning process. So you should be same. So chromosomal mutations को हम लोग large mutations बोलते हैं, and gene mutations are referred to as what? They are referred to as small mutations. Yeah, point mutations. Why? Because they only affect the gene. Chaliye, all of you answer. Don't keep silent inside my class. So what is 2n plus 1 condition known as? Trisomic. Trisomy. Trisomic is a noun. Trisomy. That is a patient. तो मैं condition पूछ रहा हूँ, तो आप trisomy बोलेंगे, okay? Not trisomic. Yes, now, what is 2n plus 1 plus 1 plus 1 and so on? Polysomic. हाँ बोलो. Polysomic. No, actually इसको हम लोग कहेंगे 2n plus 2 हो जाएगा कि नहीं? तो 2n plus 2 कौन सा कंडीशन है? Tetrasomy. Yes, but actually it is not called tetrasomy. Why? Because plus 1 indicate करता है one of a pair. तो अगर इसने 3 plus 1 दिखाया है, उसमें 3 क्रोमोसोम्स में असुविधा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है. समझ में आया? So this is actually called multiple trisomy. Okay, so this is called multiple trisomy, not tetrasomy. Understood? चलिए, so अब 2n minus 1 क्या बोलेंगे? Monosomy. Monosomy. Always remember, अब तुम देखोगे ये जो मैं असाइनमेंट्स बनाया हूँ, इसी सबसेट में आपका नीट बीट खत्म हो जाएगा. ओके, ये आप देख लेना, ये मेरा चैलेंज है. So ये जो 2n minus, I have invested the whole day today for making this assignment, which I have paid. I will not send you these assignments actually. ये मैं आज भेज दिया क्योंकि हमारा ये सब बैकलॉग है, समझे कि नहीं? चलिए, so now इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, now so अब what is 2n minus 1 minus 1 minus 1 concept? Multiple monosomy. So again, this is called multiple monosomy. क्योंकि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? नेमिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ
हाउ मेनी लेफ्ट बिहाइंड. ओके, तो जनरली 2 होता है, तो नॉर्मल इज डाइसोमी. बट अगर उसमें कुछ गेन या लॉस हुआ, अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हैं. सो नाउ व्हाट इज 2n+1 कंडीशन, तो लिखा है शायद हमने ना. तो दिस इज दी एक्चुअली 2n+1 इज सेम ट्राइसोमी. Okay, this is trisomy and again this is your, ये actually मैं copy paste कर दिया है but change नहीं किया. Multiple trisomy. Now what is 2n+2? Tetrasomy. Tetrasomy. Again Abhishek, your voice is interrogative. Okay, so I don't want you to cross question me. Understood? तो आप 2n-2 क्या हो जाएगा? Multiple nullisomy. Multiple nullisomy. क्यों? नल मतलब 0 होता है कि नहीं? तो आप Zero. -2 का मतलब क्या है? पेयर का दोनों क्रोमोसोम गया. अंडरस्टूड? एंड 4 लोकस पे है, इसलिए हम उसको मल्टीपल नालिसोमी कहेंगे. डैश इज लॉस्ट इन केस ऑफ टर्मिनल डिलीशन. बोलिए. सो क्रोमोसोम के एंड में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड टेलोमियर. तो समझ रहे हो? तो जब टर्मिनल पार्ट ऑफ द टेलोमियर डिलीट होगा, आप लोग सुनते नहीं हो, ये सब चीज मैं क्लास में कल बोल चुका हूं. तो टेलोमियर जो है अगर लॉस हो गया तो 2 क्रोमोसोम चिपक जाएगा. ये समझ में आया? सपोज 7th and 8th दोनों का टेलोमियर खो गया है, तो इट विल जॉइन विथ ईच अदर and 2 chromosomes will become 1 chromosome. It has already happened in the human evolution. समझ रहे हो? तो हमारा जो एंसेस्टर था उसके पास 48 क्रोमोसोम्स था, बट हमारा केस में दोनों पेयर अप हो गया. सो दैट इज व्हाई इफ यू सी, अगर आप 2 चिंपैंजी क्रोमोसोम्स को मैच कराओगे बैंड टू बैंड, वो एक क्रोमोसोम के साथ मैच करता है. जब मैं पढ़ाऊंगा देन वी विल डिस्कस मोर अबाउट दैट. ओके, चलिए. ना पोजीशन ऑफ डैश इज अफेक्टेड इन केस ऑफ इन्वर्जन, पेरिसेंट्रिक. यस, दैट इज Centromere. Centromere. कैसे याद रखेंगे? आई से. आई मतलब इंक्लूडिंग. तो पेरिसेंट्रिक इज इंक्लूडिंग सेंट्रोमियर, पैरासेंट्रिक इज एक्सक्लूडिंग सेंट्रोमियर. अंडरस्टूड? Dash chromosome is lost in the process of cell division. कौन सा क्रोमोसोम गुम हो जाएगा अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो? आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूटेशन, तो इससे ध्यान हर समय म्यूटेशन में रखो. हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम? स्पिंडल. सेंट्रोमियर. अरे क्रोमोसोम का बात करना, स्पिंडल घर का काम. सो दिस इज सेंट्रोमियर. ओके, तो डैश क्रोमोसोम इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. अगर म्यूटेशन से सेंट्रोमियर गुम हो गया, सो दैट क्रोमोसोम इज कॉल्ड व्हाट? एसेंट्रिक क्रोमोसोम. ओके, सो जो एसेंट्रिक क्रोमोसोम है इट इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. आगे मजा. पॉलीप्लॉइड्स क्रिएटेड बाय क्रोमोसोम, okay, duplication within a species are called क्या? अपने आप डुप्लीकेट हो गया, so that is called autopolyploidy. Okay, autopolyploidy माने इसमें कोई क्रॉस फॉर्स का जरूरत नहीं है, वो अपने आप में डुप्लीकेट करके, उसमें एंडोमाइटोसिस होता है. ओके, वो अपने आप डुप्लीकेट करके क्या हो जाएगा? इट विल बिकम मल्टीपल क्रोमोसोम्स. अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ, सो दैट इज कॉल्ड एलोपॉलीप्लॉइडी. एलोस मींस डिफरेंट, ऑटोस मींस अपने आप. तो जो अपने आप मल्टीप्लाई कर दे जीनोम को, वो ऑटोप्लॉइडी. जीनोम बढ़ाने के लिए हमने क्रॉसिंग किया, दैट इज कॉल्ड एलोपॉलीप्लॉइडी. क्लियर? Now, flies with both male and female structures are called gynandromorphs. Okay, so they are called gynandromorphs. कोई शक?
चलिए, उसके बाद ये मैंने आपको फोटो दिखाया है, तो ये कौन सा कंडीशन है बताइए, कौन सा सिंड्रोमिक कंडीशन है? टर्नर सिंड्रोम। मोनोसोमिक। नहीं, हाँ मोनोसोमी, एक एक्स गायब है, तो इसको क्या कहते हैं? यू डोंट रिकॉल? सो दिस इज Turner कॉल्ड syndrome. टर्नर X0 सिंड्रोम, या इसको X0 सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब ये सारे कौन से सिंड्रोम का केस है? this is Klinefelter. Klinefelter यस, क्लाइनफेल्टर्स। इसमें और फ्लाइज के लिए हाँ बोलो। Poly X. नहीं, इसमें सारे क्लाइनफेल्टर हैं, बट एक सुपरमेल है। दिस इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है कि नहीं? ये आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। ओके, उसी तरह से एक और भी, सॉरी क्लाइन है ये, ठीक है। उसी तरह से इधर ये दोनों भी क्लाइनफेल्टर्स हैं। ओके, ये भी क्लाइनफेल्टर है एंड ये भी क्लाइनफेल्टर है, बट ये कौन सा सिंड्रोम है? सुपरमेल। वाई वाई। तो वाई वाई कौन सा होता है? सुपर मेल। सुपरमेल। तो सुपर मेल को हम लोग जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड सुपर मेल या जैकब्स सिंड्रोम। अंडरस्टूड? सो ये आपका सुपर मेल या जैकब सिंड्रोम है, क्योंकि इसमें डबल वाई है। समझ में आया? अब ये कौन सा म्यूटेशन दिखाया जा रहा है आपको? Pericentric. ट्रांसलोकेशन पेरिसेंट्रिक। हाँ, दिस इज पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। इंवर्जन पेरिसेंट्रिक, एंड यू नो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम बुक्स इन द होल वर्ल्ड। समझ रहे हो? तो इसीलिए इज्जत से प्रिपेयर करोगे ना, तो हम हराना सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए, सो अ डैश इंटरचेंजेस सेगमेंट बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। Translocation. यस, सो ये हो गया ट्रांसलोकेशन। ठीक है, दिस इज ट्रांसलोकेशन। म्यूटेशन में क्या होता है? आपका नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में एक्सचेंज होता है। डैश रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक्चुअली इसको हम लोग रॉबर्टसोनियन कहते हैं। वो कल मैंने इसमें एक वो मिस्टेक है, उसको हम लोग चेंज करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, है ना? तो इसमें क्या होता है? दो क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, माने नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, दे फ्यूज विथ ईच अदर। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलिए, सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सॉफ्टवेयर सर से जो सुपर मेल लेखिथिला मैं सुपर मेल तो हम कहि परिया काना रेशियो देखियो पड़ियो ना। कौन सा? सर जो जैकब सिंड्रोम टा बदे एप्रोप्रिएट हो पॉली वाई प्लस एक्स रे। हाँ, तो सुपर मेल ही जैकब सिंड्रोम को सुपर मेल कहते हैं। हम लोग वहां गलत लिखे हैं पिछले क्लास में। ओके, आप कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं माय डियर, तो व्हाट आर यू कंफ्यूजिंग? बोलो। सर जो फ्लाइज और ह्यूमन कॉन्सेप्ट। यस बेबी, समझ रहे हो? सो इसीलिए यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, नॉट ड्रोसोफिला। अंडरस्टूड? तो इसीलिए आपका ये फ्लाई नहीं है। चलिए, सो नाउ लेट्स गो टू, ये सब कंपैटिबल नहीं होता ना, सॉफ्टवेयर बड़ा गड़बड़ करता है। सो नाउ विल शेयर द स्क्रीन। बड़े हो जाओ। नाउ इज इट विजिबल? यस सर। Yes, sir. चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। सो अभी आप लोग सब बंद करेंगे। आई वांट ऑल अदर्स टू टॉक। व्हाई ओम एंड ऑल? सुमन, व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग? चलिए, सो व्हाट आर द, प्लीज प्रिपेयर फॉर क्लास। एक्चुअली क्या होता है मालूम है? टीचर को दोष देना बहुत आसान होता है।
तो इसलिए प्लीज प्रिपेयर फॉर योर क्लास. ओके, नाउ आई विल मेक योर क्लासेस मोर टफर. ओके, सो इसलिए आप बिना पढ़े क्लास में नहीं आ सकते. अभी हर दिन हमारा असाइनमेंट इस तरह से हम लोग करेंगे, भले ही टाइम नष्ट हो. चलिए, सो व्हाट आर द कैरियोटाइप्स ऑफ ए फीमेल डाउन सिंड्रोम पेशेंट? बोलिए. नंबर बोलो. सेम, दिस इज 21st ट्राइसोमी. ओके, इसको हम लोग 21st ट्राइसोमी बोलेंगे. मतलब गर्ल हो बॉय हो उससे कोई मतलब नहीं है. ओके, उसको आप ऐसा लिख सकते हो 2n इज इक्वल टू 45 प्लस xx कॉमा सॉरी ब्रैकेट 21. तो इस तरह से उसको लिखा जाता है. दिस इज द टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीमेल डाउन सिंड्रोम. अंडरस्टूड? एक्चुअली वी डोंट हैव स्पेस टू राइट. इसको यहां लिख लेते हैं. ठीक है. सो 21st ट्राइसोमी, बट उसको कैसे लिखेंगे? 2n इज इक्वल टू 45 प्लस xx, क्योंकि फीमेल बोल दिया है. एंड व्हाट इज 21? यहाँ ट्राइसोमी हो रहा है. अंडरस्टूड? यहाँ वो क्रोमोसोम बढ़ रहा है. ओके, अ मेल विथ 13th ट्राइसोमी. तो सेम वैसे हम लोग इसको एडवर्ड सिंड्रोम बोला जाता है. हाँ सॉरी पटाउ सिंड्रोम. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 30. हाँ, पटाओ. डोंट बी वेरी. ट्राइसोमी है ना. तो इसको हम लोग लिखेंगे 13th ट्राइसोमी ब्रैकेट रे 2n इज इक्वल टू 45 प्लस xy 13. इसको इस तरह से लिखना है आपको. So this is how you will write the 13th trisomy. Now female with Turner syndrome, बोलो 2n is equal to 44 44 plus x0 x0. 0. ओके, तो दिस इज द x0. इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो. ब्रैकेट आप लिख सकते हो x क्रोमोसोम. तो इसमें एक x क्रोमोसोम का डिलीशन हुआ है. मेल विथ क्लाइनफेल्टर, बोलो जल्दी. P5 plus XY. 45 प्लस X. xy ब्रैकेट में X. यस. इसमें आप लिखेंगे x इन xy. ओके, तो x इन xy होगा आपका केस. A male with deletion in the short arm of 11th chromosome. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये देखो 2n इज इक्वल टू 44 प्लस xy. ओके, ये नॉर्मल है. मैंने आपका डिलीशन हुआ है. इसमें आप लिखेंगे डेल 11p. ओके, तो इसको लिखा जाता है डेल 11p. नाउ व्हाट इज डेल डिलीशन? व्हाट इज 11th क्रोमोसोम. शॉर्ट आर्म में हुआ है इसलिए p, लॉन्ग आर्म में होने से q. ओके, एंड क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं Q. आएगा, इसलिए 22n इज इक्वल टू 44 प्लस xy डेल 11p. अंडरस्टूड? चलिए, नाउ अ मेल विथ डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 11. हाँ, ये हो गया. अब आइडेंटिफाई द सिंड्रोम. हाँ बोलो. सर यदि वो शॉर्ट आर्म के बदले लॉन्ग आर्म होता तो 11Q हो जाएगा. Q. इट इज 11Q. एंड इसने टर्मिनल है कि इंटरकैलरी बोला नहीं है. अगर टर्मिनल होगा इसके पहले सामने लिखोगे टर डेल. अगर इंटरस्टिशियल होगा इंट डेल. समझ रहे हो? बट सिंस कुछ बोला नहीं है हम वो नहीं Yes, लिख sir. सकते. ये क्या प्रॉब्लम है इस कैरियोटाइप में? बोलिए. 21 में एक Down arrow syndrome. दिया extra है. डाउन सिंड्रोम है. Trisomy 21. So here is the 21. problem.
Okay, so this is actually what? This is मेल में Down 21st syndrome. ट्राइजोमी. ओके, इसका ब्रैकेट में डाउन्स मेल आप लिख सकते हो. ओके, डाउन्स एंड मेल एक्स वाई है तो इसलिए डाउन्स मेल. आइडेंटिफाई द प्रोजेनी ऑफ द फॉलोइंग पनेट स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्स वाई क्लाइनफेल्टर क्या? Male. syndrome. मेल सिंड्रोम. बट ये कौन सा क्रॉस है? याद करिए, ये ब्रिजेस और क्रॉस जो है. डिप्लो है, ब्रिजेस क्रॉस है. द ब्रिजेस Bridges क्रॉस. तो इसलिए ये क्लाइनफेल्टर्स क्या होगा? फीमेल. फीमेल होगा. ओके, इसलिए ध्यान रहे, दिस इज ब्रिजेस क्रॉस. ब्रिजेस क्रॉस इन ड्रोसोफिला. अंडरस्टैंड? तो इसलिए ड्रोसोफिला में एक्स एक्स वाई क्या होता है? मेल. अंडरस्टूड? फीमेल. आपको, हाँ सॉरी, फीमेल. देख रहे हैं आपको कितना सारा चीज ध्यान में रखना होता है. चलिए, अब ये एक्स 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 कंडीशन क्या हो जाएगा? Super female. सुपर सुपर फीमेल. फीमेल. ओके, फिनोटिपिकली वो फीमेल ही है, बट हम इसको सुपर फीमेल बोलेंगे. ये क्या हो जाएगा? एक्स जीरो क्या? मेल. Male. मेल. So this is X0 male and Y0 क्या हो जाता है? Y0 dies. Okay. Due to no X, क्योंकि X में वाइटल जीन्स होता है तो आप X को खो नहीं सकते. अंडरस्टूड? आ गया मजा? So can you Yes. think of two non-disjunction scenarios what that would produce an XXY? तो XXY में क्या हो सकता है? हम इसको लिख सकते हैं Y in XX, है लगे नहीं? या X in XY. तो अब Y in XX में कहाँ नॉन डिसजंक्शन हुआ? नॉन disjunction during oogenesis. समझ रहे हो? तो नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग क्या? oogenesis. इधर क्या होगा? बोलो. स्पर्मेटोजेनेसिस. हाँ, तो ये होगा आपका नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस. तो इसीलिए इन दो कंडीशंस में आपका हो सकता है क्या? आपका XXY बन सकता है. Now what is this MCQ answer? सर ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन. Option D. ऑप्शन डी. Yes, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी. ठीक है, चलिए. So these are some questions which I wanted to do. Okay, because हम लोगों ने म्यूटेशन किया हुआ था, but we can see the other questions also. आप देखिए कितना मेहनत आज. I have made all of this today. तो आप इसको try to fill it up. Now see, this is the scenario I have made for our. ये बाद में बना तो. So this is the Nobel medal. समझ रहे हो? ये एक साइड है, ये उसके पिछले साइड है. And this is the medal for Nobel Prize in Medicine and Physiology. And these are the different aims. So हमारे लिए important कौन सा aims है? So we should remember, for us, Right. number 1 is this one, that is AIMS Delhi, and number 2 is this one, that is AIMS Bhubaneswar. है, बाकी है आपका मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो. एक्चुअली लोगोस को छोटा करना पड़ा क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन में लोगो ही लोगो होता है. इसीलिए जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए ये मेरा एक कोशिश है. ओके, चलिए. सो इसीलिए दीज आर क्वेश्चंस ऑन मेंडेलियन जेनेटिक्स. इसमें आपको दिया, आपको इसका टर्म यूज लिखना है. ओके, हेरिडिटरी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, तो आप यहाँ लिखेंगे. ओके, सो यू हैव टू राइट द ट्रेट.
चलिए उसके बाद ये डेविएशंस, ये आपका जो है अलग अलग क्रॉसेस का डिटेल्स है। ओके आपको इस सब का स्टोरीज बताना है। ओके दिस इज पेडिग्री एनालिसिस, ट्राई टू कंक्लूड, विल डिस्कस। देखिए इधर मैंने पेडिग्री दिया है, पूछा है मैकेनिज्म, इधर मैकेनिज्म दिया है, पूछा है कि इनहेरिटेंस कैसा है। ठीक है, सो ये आपका मॉलिक्यूलर बेसिस है। दिस इज फॉर माय स्कूल स्टूडेंट्स बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट, सो दे विल डू इट। एंड अदर्स चिल्ड्रन, अगर आपके स्कूल में है तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। ओके दिस इज ओनली गिवन टू जे स्टूडेंट्स। ओके डोंट रेज दिस इश्यू अदरवाइज। चलिए तो ये आपका देखिए, ये फिगर देख रहे हो, ये फिगर आपको मिलेगा नहीं। सो इसलिए इस फिगर को भी आप रख सकते हो। सो ये कौन सा मैकेनिज्म देखा जा रहा है? प्राइमिंग ऑफ डीएनए, है कि नहीं? टाइमिंग। तो देखो टोपोआइसोमरेज रिलीव कर रहा है ट्विस्टिंग फोर्सेस, हेलिकेज खोल रहा है, ये आपका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स है। कितना सुंदर ड्राइंग है, देख रहे हो? सो प्लीज एंजॉय। यस सर। तुम जितना मेहनत करोगे जेजेस उतना देगा। एंड दिस इज द लूपिंग कंसेप्ट ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। ओके चलिए सो इसीलिए कोशिश करिए आप जितना कुछ कर सकते हैं। इस यू कैन टेल दिस एक्चुअली, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ? दिस यू कैन टेल कहाँ गड़बड़ है? सर 22 में ऊपर से चलना, 2 सर 2 3 2 3 इधर बिल्कुल, हाँ इधर 6 6 6 सर 10 13 13 13 सर 10 10 10 में also. एक है, 10 में मोनोसोमी है। 10 यस सर। और 15 14 में 15 14 में 14 मोनोसोमी, 15 15 15 है 18 18 19 19 19 में क्या हो 21 गया? 22 19 में सब टूट गया है एक्चुअली। ओके यस सर। एंड अन्य सबों में इंग्लिश गड़बड़ है। 21 22 21 22 22 सर अब y एब्सेंट अच्छी बात है। हाँ ये x Absent. 0 है, देख रहे हो? सर X0 चलिए अब इसमें घोटाला क्या है पहले बताइए। तो 2n वो तो बाद में लिखेंगे हम लोग, बिकॉज टोटल ऐड करने के बाद। प्रॉब्लम क्या क्या है बताओ? +1 कहाँ है बताओ? सर 2 3 2 6 13 15 13 3 15 6 और 13 15 22 13 15 15 22 22 22 है ना? तो ये ट्राइसोमी है। ओके एंड मोनोसोमी किधर हो रहा है देखो? 10 14 10 21 18 10 14 18 10 14 18 21 यू कम फ्रॉम वन साइड है, डिस्को नाच रहे हो ना क्या? एक तरफ से ऊपर से 10 हाँ। 14 18 21 10 14 तुमको मजा लग रहा है ना? जब तू टाइप करेगा तो मैं देखूंगा। 10 14 18 21 21 एंड x ऑल्सो X also यस सर। तो ये आपका मोनोजोमी है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? 2n इज इक्वल टू, वो हिसाब करने के बाद करेंगे। ओके 2n प्लस 1 2 3 4 5 6 +1, इसको कॉपी पेस्ट करो, मैं इतना बार नहीं लिख सकता। ओके +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 हो गया 6 ठो, नहीं 7 ठो हो गया। 2n +1 +1 +1 +1 +1 +1 एंड -1, ये कितने बार होगा? 5 बार। 2 3 4 -1 -1 हुआ तो 2n +1 +1 +1 +1 +1 yes sir -1 ओके देखो कैसे लिखा जाता है ये। हो गया? इसका होगा क्या? सिंपल भाषा में बोलो।
मरेगा साला। ओके, इसका कुछ नहीं होने वाला, इतना घोटाला है इसका। ओके, प्लस इधर क्या घोटाला हो गया है, ये सब टूट टाट गया है कि नहीं? तो दिस सेक्शंस हैव बिकम व्हाट, डिलीटेड। ओके, डिलीट करके तीनों टूट के 6 पीस हो गया है। ओके, तो एक्चुअली ये भी ट्राइजोमी है। ओके, तो इसका भी हमें नंबर ऐड करना पड़ेगा 19। ओके, अबे भाई ये क्यों दब जा? सर मल्टीपल ट्राइसोमी है ना? अरे यार ये फिर मिट गया, ये गधा कहीं का, ये कीबोर्ड। चलो वो खुद देख लेना, फिर मैं टाइप नहीं कर सकता। यस सर। ठीक है, एक्चुअली ये मल्टीपल हाँ, ये जो है ये मल्टीपल ट्राइजोमी कैसे होगा? मल्टीपल ट्राइजोमी भी है, मोनोसोमी भी है। ओके, एंड प्लस माइनस काटने के बाद आप नंबर बढ़ाएंगे। इधर इसमें क्या है, 7 तो प्लस है, 5 तो माइनस है, तो अल्टीमेटली वो बन जाएगा 48 क्रोमोसोम्स। समझ रहे हो? प्लस इधर आप लिखेंगे डिलीशन। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे इसमें? तो भाई ये टूट गया है, बट ये इसमें सेंट्रोमियर नहीं होगा, तो हम उसको क्रोमोसोम नहीं मान सकते। समझे कि नहीं? चलिए, तो स्टिल वी हैव डिस्कस्ड इट। सो सर गोटे कलर को गोटे स्पेसिफिक पे ना सेमति न कौन सा जो कलर्स होगा थिला सर, गोटे पेयर पे गोटे? आई डोंट गेट इट, प्लीज टेल अगेन। माने गोटे क्रोमोसोम पे गोटे कलर कोडिंग दिया हेतला कि नहीं नहीं, ये माने इथे तो नथिला। हाँ, किंतु दिया जाएगी सेमति? नो नो नो, ऐसा कोई रूल नहीं है। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड ए मैकफिश। व्हाट इज मैकफिश? मल्टी कलर फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। समझ रहे हो? अच्छा। ये छोटा सा टर्म नहीं है माय डियर, एंड ये बहुत कॉस्टली कैरियोटाइप है। इसमें बहुत सारे कलर्स यूज के, फ्लोरोसेंट कलर्स हम लोग इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन किए हैं। मींस वी हैव फिक्स्ड द डाई इनसाइड द सेल्स देमसेल्व्स। ओके, इसको हम लोग मैकफिश बोलते हैं। अगर आप लोग सेल बायोलॉजी क्लास को फॉलो कर रहे हो, यू मे कम अक्रॉस दैट। ओके, जो 11th का सेल बायोलॉजी में अगर हुआ तो मैं ये लोग को पढ़ाऊंगा। ये चीज डिपेंड करता है टाइम एंड इंटरेस्ट। ओके, चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। सो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम फॉर दिस सेशन, तो वी कैन ऑल्सो डिस्कस सम मोर डाउट्स। ये जो कलर आप बोल रहे हो ना, ये अलग अलग कलर है डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन, एंड दिस कलर इज नॉट डुप्लीकेट, ये ओरिजिनल कलर्स हैं। इसको बैंडिंग टेक्निक्स बोला जाता है। ओके, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंडिंग। तो ये कभी मौका मिला तो पढ़ाएंगे। एक्चुअली आई हैव नॉट टॉट यू दिस कंसेप्ट ऑफ बैंडिंग। तो बैंडिंग अलग अलग तरीके का होता है, जैसे जी बैंडिंग। ओके, जी बैंडिंग क्या है उसको कहते हैं? बिकॉज वो जिम्सा स्टेन यूज करता है। ओके, तो जिम्सा सेंसिटिव बैंड्स। ओके, तो जो बैंड जिम्सा सेंसिटिव होंगे उसको जी बैंडिंग बोला जाता है। उसी तरह से टी बैंडिंग वो किसको करता है? टेलोमियर। ओके, सी बैंडिंग वो किसको करता है? सेंट्रोमियर। ओके, उसके बाद एन बैंडिंग जो कि प्लांट्स में ज्यादा कॉमन है, वो एनओआर रीजन्स को बाइंड करता है। तो प्लांट का जो क्रोमोसोम्स है उसमें ज्यादा एनओआर रीजन्स है, इसलिए उसको एन बैंडिंग बोला जाता है। फिर एक क्यू बैंडिंग आता है। क्यू बैंडिंग इसको हम लोग कहते हैं क्विनाक्राइन मस्टर्ड, ये एक डाई है। ओके, क्विनाक्राइन मस्टर्ड सेंसिटिव, तो ये बैंड्स इस डाई को सेंसिटिव होंगे। अंडरस्टूड? उसी तरह से अब ये सब का उल्टा जो है उसको आर बैंडिंग बोलते हैं। ओके, रिवर्स ऑफ ऑल अदर्स। ठीक है, तो इसलिए आर बैंडिंग में आप क्या देखोगे? जो टी ना हो, सी ना हो, एन ना हो, क्यू ना हो, तो
तो वो आर बैंड है। ओके, तो ये सब अलग अलग कलर्स में वो बनाया गया है। ओके, चलिए, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल केस। So any other doubts you can ask, then we will go. So please try to solve this question and we will be solving it accordingly. हम लोग पर डे एक स्लाइड बिगिनिंग में एंड एक स्लाइड एंड में करेंगे एंड इट शुड बी टेकिंग ओनली 5-10 मिनट्स। इसलिए उससे ज्यादा टाइम आई कैनॉट अफोर्ड, फिर सिलेबस अफेक्ट होगा। ओके, बट व्हाई आई वांट टू डू दिस, बिकॉज इट विल हेल्प अस टू कीप इन टच विद द क्वेश्चंस, है कि नहीं? चलिए और बोलिए।